Okay, class. Today we have to cover two experiments, experiment number 4 and 7. और नेक्स्ट वीक आप लोगों के एक्सपेरिमेंट्स की इवैल्यूएशन है. आई विल टेक वाइवा. वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी शेड्यूल में कि सर उस्मान के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स का वाइवा नहीं हुआ, वो कंफर्म करते हैं उनसे. फिर आपको फाइनल जो शेड्यूल है आई विल इन्फॉर्म यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स के आप लोगों के किन किन एक्सपेरिमेंट्स की इवैल्यूएशन है. ठीक है, तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और 7 दोनों कवर करेंगे, सो दैट नेक्स्ट वीक यू कैन गिव द इवैल्यूएशन इन 2 हाउस. नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ देगा आज का इवैल्यूएशन और सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट वीक. Okay, so please make sure you will give the evaluation half size from the next week onward. And today we'll start with your experiment number 4. I have shared the relevant material with you in experiments की audio recording PDF और जो experiment की comments है I have shared that with you. So please go through with that as well. Starting experiment number 4. This is to perform the experiment on the Pelton wheel and hence to plot its statistic curves. The operators which will be required to perform the experiment that is Pelton wheel, weights, charge measuring tank, tachometer and stopwatch. These are the things which will be required to perform the experiment. We will first review the basic working principle of the Pelton wheel. We have already discussed it in the theory. Also, we have covered the study of these machines. So you know the basic working principle and the working of all the components one by one. So just for the review, you can see this figure. This figure shows the typical layout of the runner in the Pelton wheel, which is connected with the shaft, and this is the penstock through which the water is coming from the reservoir, and at the end of the penstock, a nozzle is connected. Inside the nozzle, we are having a spearhead needle, which can move axially in the forward and backward direction, and due to its movement, the discharge of the water, which is coming in the form of the jet into the machine, that will be controlled. This is the power, which is the input power for the turbine, and this is the hydraulic power. You can see that this is the power which is exerted by the water on the buckets of the rudder. So this is the input power. This is the hydraulic power. Under the action of this applied force, the bucket will move forward, and as the buckets are mounted over the periphery of the rudder, they will also rotate. So rotation of the runner will indicate the conversion has taken place from the hydraulic to mechanical energy. Further, this mechanical energy is transferred with the help of this shaft to the other end. In the field, this shaft is further connected with the generator, and in the lab, it is connected with the braking drum, which will be used to measure the output power by applying the brakes. First of all, we will see that how you will find out the input power. तो इसमें बेसिकली आपने पावर की कंप्यूट करनी है, what are the input power, what are the output powers, and finally you will find out the efficiency. The input power of the machine is also termed as indicated horsepower. This is the hydraulic power. Okay, अभी मैंने आपको डिस्कस किया है that the power is impacted by the jet of the water, so it is the hydraulic power. It is gamma QH. The formula for the hydraulic energy or hydraulic power is gamma QH. So in this case, this is the input energy or input power. So it is the formula for this indicated horsepower. It is gamma QH. Over here, this gamma is a specific weight of the water. Its value will vary with the temperature of the liquid. So whatever the temperature is given to you, you will note down the value of gamma for that temperature, and that will be used in the calculations. Q is a discharge. So we have already discussed that the turbine is not using the amount of the water, it is only using the energy of the water. Once the water has strike to the buckets of the runner, the water has to leave. So through the tail race channel, it will be collected into the tank, which is in your case the tank available over there in the lab. इस टैंक की डायमेंशंस आपको गिवन है, so that will give you the volume which will be filled with incoming water. So that volume is known to you. You will note down the time of the collection for the water in that volume. The ratio will give us a discharge, that is in meter cube per second. Then we have age. It is the head which is available at the base of the nozzle. The base of the nozzle is this point. This is the nozzle base. So theoretically, we need to install the Bourdon gauge at this point.
But you can see this layout that base of the nozzle is inside the casing, and we don't have any space to attach the bottom gauge exactly at this required position. So it is installed at the nearest location to the base of the nozzle. Now the reading which this bottom gauge will give us, that is the reading slightly uh, more than the reading at the center of the penstock or at the center of the nozzle. Okay, because of the reason that with the increase in the elevation, the pressure will drop. So the reading which this gauge is giving us, that is less as compared to the actual reading of the pressure at the center of the pipe. So it means that we have to apply the correction. So it means that we have to apply the correction on this observed reading, and as the pressure is decreasing in the observed reading, so we will apply the correction, and that correction will be positive. The correction is in the terms of this elevation difference, that is D. It is the distance between the center of the gauge and the center of the pipe. It will be also be given to you. आप लोगों ने ये पैरामीटर्स अपने एक्सपेरिमेंट में मेजर करने थे, नोट करने थे, जो आपकी स्टडी की है, ठीक है। तो होपफुली एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आपने जो स्टडी की है, you know these basic parameters. Otherwise, they will also be given to you in the observed data for this experiment. So after applying the correction, you will get this value of H. It will be in meters. So when you will put the values in the formula, it will give you the power in watts. This is the input power, which is also termed as indicated horsepower. Now, in this experiment, we will keep the discharge of the turbine constant for one particular opening. अगर एक opening के लिए discharge constant है, it means that the input power is also constant. Now we will start. मैम ये बेस ऑफ नोजल कहाँ से कहाँ क्या कह रहे हैं? मैम ये बेस ऑफ नोजल कहाँ से है, सेंटर के पाइप से? बेस ये देखें, ये नोजल है, ये देखें, ये नोजल है ना जहाँ से एरिया कन्वर्ज हो रहा है, राइट। तो दिस पॉइंट जहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है, ये देखें, इफ यू कैन फॉलो द पॉइंटर डायरेक्शन जहाँ से नोजल स्टार्ट हो रही है, दिस इज द नोजल बेस, ठीक है। ये सेक्शन जहाँ से आपने नोजल कनेक्ट की हुई है, दिस इज द नोजल बेस, ठीक है। ओके मैम। Okay, now we will discuss how you will find out the output power. In this case, you are measuring the output power indirectly by applying the brake. Okay, so if you see this layout, this is the machine, and this is the shaft which is coming from the runner. And in case of the lab layout, this shaft is connected with the brake drum arrangement. It will apply the brakes on the shaft so that you can measure the output power indirectly. जितनी ज़्यादा इनिशियली इनपुट है मशीन में, उतनी ही रोटेशंस जो हैं वो शाफ्ट के अंदर रिड्यूस होंगी। Okay, so ultimately, accordingly, you have to apply equal and more amount of the brake on the shaft to make it stop. So this is the indirect way that will be used to measure the output power of this turbine. If you see this figure, ये आप ये देख रहे हैं, ये basically view है इस तरफ से. This is the shaft with which the tachometer, which is also termed as RPM gauge, it is attached. This is the braking arrangement. This braking arrangement will have a braking drum, and over it you have the leather brake shoes. So shaft is connected with the braking drum, which is a larger diameter wheel, and over it you are having the arrangement for the leather brake shoes. Further, this arrangement is connected on the other end with this spring balance and the pan in which the weights can be placed. आप इस फिगर में देखें, ये पीछे व्हील ब्रेकिंग ड्रम है, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस एंड दिस इज द वेइंग पैन। इसमें आपने वेट्स प्लेस करने हैं। This is the tachometer over here. Okay, now initially when you have not applied any brake, this RPM gauge, this tachometer is measuring the maximum value of the end with which the shaft is rotating. Okay, actually में ये connected है after the braking drum. तो जो rotation shaft ने braking drum में transfer की हैं, ये उन rotations को measure कर रहा है. Now initially when you have not applied any brake, this n is n maximum. The number of the rotations, they are maximum number when you have not applied any brake. Now you will apply the brake in small increments that will reduce the value of the rotation or n value.
आपने ब्रेक सडनली अप्लाई नहीं करनी है टिल मैक्सिमम, यू विल अप्लाई इट इन इंटरवल्स बिकॉज यू नीड टाइम टू प्लॉट इट। अब आपने ब्रेक कैसे अप्लाई करनी है? सी, व्हेन यू विल क्लैम्प इट, आपके ब्रेकिंग ड्रम के अरेंजमेंट के एक तरफ क्लैम्पिंग अरेंजमेंट है एंड ऑन द अदर एंड यू हैव दिस अरेंजमेंट. So you will initially do some clamping. That clamping will bring the leather brake shoes closer to the braking drum. Okay, अभी भी brake apply नहीं हुई. But when you have clamped it, this whole arrangement will come in contact with the braking drum. It means that it is now acting as a unit of this braking drum. इनिशियली अगर रोटेशन थी ड्रम की काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब ये सारी अरेंजमेंट उसी ड्रम के साथ अटैच हो गई है. इट विल ऑल्सो शो यू द रोटेशन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. You cannot maybe physically see that rotation, but that can be shown with the reading of this spring valve. When you have clamped it, the leather brake shoe arrangement will come in contact with the drum, and this whole arrangement will try to move also in the upward direction. That can be shown on the reading of the spring balance. So you can see a positive reading on the spring balance, which shows that the arrangement is now clamped with the braking drum. Now you have to apply the brake. To apply the brake, you have to apply the counter torque. Okay, for that you will put the weights in the pan. This W, the weight placed in the pan into this lever arm, this W into L, will produce a braking torque. This torque is acting in the counterclockwise direction, that is the direction opposite to the rotation of the drum or the shaft. So when you are applying the counter torque, that is basically the source through which you are applying the brake. अब अपने weights कितने place करने हैं? You will put the weights unless this spring balance reading shows the zero reading again. तो जितना आपने पॉजिटिव टॉर्क इसमें पहले प्रोड्यूस किया था ड्रम की वजह से, शाफ्ट की वजह से, अब उतना ही ऑपोजिट टॉर्क आपने वेव्स के थ्रू प्रोड्यूस किया है. तो अगेन द रीडिंग विल शो द जीरो वैल्यू. So this is how you will apply the brake. Please make sure that only clamping will not apply the brake, और अगर आप clamp किए बगैर weights place कर रहे हैं, also that will not apply the brake. To apply the brake, you have to do the clamping and you will put the weight both. So both of these steps will apply one complete reading of the brake. अगर आप clamping नहीं कर रहे हैं या अगर आप weight put नहीं कर रहे हैं pan में, the brake is not applied. So you will apply the brakes in small intervals. It means that you will do clamping and you will put the weights in small intervals unless the rotation becomes fully zero. Now when you are applying the brake, you are applying the brake torque, that is termed as T, that is W into L, and through this T and N value you can find out this brake horsepower, that is P naught. It is termed as brake horsepower and formula is 2 pi nt over 60. Over here this 2 pi and 60 are constant values. N is the RPM. This is the reading which you are measuring from the tachometer, and this is the T value, which is the value which is coming from these weights placed in the pan. Initially, when you have not applied any brake, this T is 0 and this N is maximum. But when you start applying the brake in intervals, this T will increase and this N will decrease. Okay, and when you have applied maximum brake, this T will become T maximum and this N will become 0. So this is the variation of N and T with the increment in the applied brake. Now, one thing which you have to note down, that in the machine which you have in your lab, the tachometer which is attached, it is having the minimum reading of 600. Okay, it means that theoretically, when you are increasing the T value, N should be decreased till 0. क्या आप ब्रेक अप्लाई करके N की रीडिंग को इस केस में भी 0 कर सकते हैं, but your tachometer will not be able to read that because the tachometer is having the minimum value as 600. So you can apply the brake after 600, but it will not be measured by the tachometer. So in this experiment, we will apply the brake till your tachometer reaches the minimum value, that is 600 RPM. तो अभी आगे आपके ग्राफ में कैसे इंडिकेट होगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं. So finally, if you have the output and input power, you can find out the efficiency by their ratio. Also, in this case, we are having the concept of the gate opening. Gate opening is basically the opening of the nozzle. Okay, हमने discuss किया था that the opening of the nozzle can be controlled by the movement of the spear-headed needle. If you move this needle fully in the forward direction,
then the opening will be 0. But if you move this needle fully in the backward direction, the opening will be maximum. So you are performing this experiment for two openings, for 50% and for 100% gate opening. We will see that what will be the effect of the opening on the other parameters of this machine. Yeah, obviously अगर आप opening को 100 से 50% कर रहे हैं तो आप discharge को भी half कर रहे हैं, right? अब आप ये control कैसे करते हैं opening? In the lab, this needle is connected with a wheel at the end. This wheel can be controlled manually to control the movement of this needle. If the nozzle is fully closed at the start, then the 6 turns of this wheel in the counterclockwise direction will give the 100% gate opening. It means कि counterclockwise movement अगर आप इस wheel को दे रहे हैं तो आपकी machine की जो nozzle जो needle है that is moving in the backward direction. Okay, nozzle की opening increase हो रही है. And if you move it in the forward direction, the opening will decrease. So you have to do experiment for both openings, that is 100% and 50% gate opening. From the fully closed condition, to achieve the 100% gate opening, you will rotate the wheel anti-clockwise with 6 turns. And to attain 50% gate opening, you will, from the initial 0 opening, आप wheel को 3 turns देंगे in the anti-clockwise direction. Okay? लेकिन अगर आपने 100 से 50% में मूव करना है देन यू विल गिव 3 टर्न्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट डिपेंड्स इनिशियली आपकी नोजल की ओपनिंग 0 है या मैक्सिमम है. अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड द रोटेशन ऑफ द व्हील. एंटी क्लॉकवाइज से वो ओपन हो रहा है और क्लॉकवाइज से वो क्लोज हो रहा है. Okay, now the characteristic curves. These are the curves which you have to basically plot through the experimental results. इसको हम डिस्कस करते हैं with this figure. So in this graph you are having the value of n along the x and along y you have 3 parameters. Those are eta, p naught and t. This graph shows the variation of these variables which are interlinked. It is a very useful curve, especially at the time of the purchase of the machine. ये यूजफुल किस तरह से है? फॉर एग्जाम्पल से यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ग्राफ कि अगर आपने इस मशीन से मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करनी है देन इट शुड बी then this should be the speed of the machine at which it should mostly run. ठीक है, लेकिन अगर आप ये स्पीड उस कंडीशन में अचीव नहीं कर सकते जहाँ पे आपने इस मशीन को इंस्टॉल करना है देन देयर इज नो यूज ऑफ purchasing this machine and installing it at the site. Okay, so with the help of these curves, you can have an initial idea that what are the requirements to get the maximum output from this machine. अगर आप वो input parameters maintain कर सकते हैं साइट पे, then you can go with this option. Otherwise, you can switch to any other machine. आपके पास बेल्ट एंड व्हील्स की डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर्स के साथ आपके पास डिफरेंट मशीन अवेलेबल होंगी. So you can switch to any other option if one option is not giving you the desired result. या अगर आप उसके इनपुट पैरामीटर्स मेंटेन नहीं कर सकते. Okay, now in this graph, the first reading which you will get from your experiment that is of n maximum. जब आपने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं की तो जो n की वैल्यू है that is maximum. It is n maximum. You start applying the brakes and that will start reducing this n value. You will get your experimental points till you reach the value of n as 600. Now, further beyond 600 till 0, you don't have any experimental points. That is why you can see I have shown a threshold line at the 600 RPM and between 0 and 600, these trends are extended with the dotted lines. It shows that you don't have any experimental points within this range, and based upon the trend in this zone, the curves are extended till the origin point. Okay. Now you have 3 graphs. One is in between efficiency and n, second is in between P naught and n, and third is in between T and n. These are the typical variations of these curves, and you will draw the same. आपने सारे points को one by one join नहीं करना. You will draw the best fit curves. और वो trend क्या होगा उन curves का वो मैंने आपको यहाँ पे show कर दिया. ठीक है. तो सबसे पहले जो आपने पॉइंट लोकेट करना है इसमें दैट इज ईटा मैक्सिमम. दैट व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द ईटा कर्व, एफिशिएंसी कर्व.
that is eta maximum. Now, respective to eta maximum, you will note down the value of n. That n is termed as n naught. It is a normal speed which is giving us the maximum efficiency. आपने दो पैरामीटर्स फाइंड कर लिए, that is eta maximum and n naught. Now, respective to this n naught, the value of p naught is also maximum. It is p naught maximum. Okay. Also, respective to this n naught, the value of t is t naught. It is a normal braking torque in Newton meter. Now, further, one point should be kept in mind that origin of all the parameters along y is same. Don't get confused that I have shown different lines for all three, so उनका origin भी different है. No, the origin of all three graphs are same. It means कि आप इन तीनों पैरामीटर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. बेसिकली इन तीनों पैरामीटर्स का स्केल डिफरेंट है. So just to make it convenient to read the scale of each parameter individually, these three parameters are shown on different vertical lines. ये डिस्टेंस जो है दोनों लाइंस में ये ऑन स्केल नहीं है. ठीक है, सो ये रैंडमली शो किए हुए हैं. अगर आप चाहें तो इनको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक ही पे शो कर सकते हैं, बट मेक श्योर इट शुड बी इजीली रीडेबल. नाउ द लास्ट थिंग विच यू नीड दैट इज द मैक्सिमम ब्रेकिंग टॉर्क टी मैक्सिमम. वो कहाँ होगी? जब आपकी एन की वैल्यू 0 हो गई है. ओके, दिस इज टी मैक्सिमम. नाउ इफ यू सी डायरेक्टली दिस ग्राफ इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ ईटा, ये लाइन. ठीक है, आपने अगर टी की वैल्यू रीड करनी है तो आपको पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा सिर्फ रीड करने के लिए. तो दैट इज वाई दिस टी लाइन इज शोन with this extension till this line. अगर आप P का पैरामीटर यहाँ पे शो कर रहे हैं instead of efficiency, तो फिर आपको ये एक्सटेंशन करने की भी जरूरत नहीं है. So make sure you don't have any scale beyond this point 0. ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स रैंडमली डिफरेंट डिस्टेंस पे शो किए हैं जस्ट टू मेक देम इजीली रीडेबल. दैट्स इट. So this is a typical characteristic curve for the Pelton wheel, and the procedure is quite simple. You will apply the brakes in different intervals. और आपने ये काम करना है दो ओपनिंग्स के लिए, वन इज फॉर 50% एंड वन इज फॉर 100% गेट ओपनिंग. ठीक, अब हम ये देख लेते हैं प्रोसीजर थोड़ा सा. The video which I have shared with you via WhatsApp link, उसके अंदर ये video with sound है, so you can also view that afterwards if you're not clear anything about this.
Okay, so this was regarding the performance. It will be more clear to you when you will come to the department and you will take few readings by yourself. It will be more clear to you. So now this is the table for the observation and calculation for both the openings. This is for the 100% gate opening and this is for the 50% gate opening. Okay, so this is the observed table, observed data table, and this is the table for the calculations as well. Table number 4.5, you have to write down the readings for both the openings and you can do a comparison that what is the effect of the gate opening on the values of different parameters. Finally, you can write down the comments. Okay, so this is the data given to you for the calculations and for plotting the graph. This is for the 100% gate opening and this is for the 50% gate opening. Okay, so this is regarding this experiment number 4. Now please let me share the experiment number 7 slide with you. After that, I will take if you have any query regarding this. मैम जी बताएं। मैम एक वीक में एक ही एक्सपेरिमेंट सही है मैम, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो वाइवा आप बेशक ऑन कैंपस ही ले लें। देखिए ऑन कैंपस भी आपकी वैल्यूएशन होनी है। असल में आप लोगों की असेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। आप लोगों की थ्योरी के असाइनमेंट्स चेक होनी है, आप लोगों की सीईपी चेक होनी है, आप लोगों ने ओपन एंड लैब करनी है आके, उसकी भी वैल्यूएशन होनी है। फर्दर आप लोगों ने साइकोमोटर भी करना है। तो ऑलरेडी जो है ना वो पूरा वीक जो है काफ़ी पैक्ड है। हम लोगों ने पहले सोचा था कि वैल्यूएशन आपकी सारी उस वीक में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्विज ही कंडक्ट कर लें आप लोगों का, तो आई थिंक दैट विल बी इनफ। तो ये ज़्यादा मैम डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप देख लें। जी मैम नेक्स्ट वीक एक्सपेरिमेंट करा के तो फिर लास्ट वीक में अगर एवेल्युएशन ले लें, क्योंकि मैम एक वीक में 2 बच्चे असल एक्सपेरिमेंट में तो शेड्यूल तो काफी ऐसे ही कम। था, लेकिन क्योंकि ना बच्चे आप लोग को मतलब 3 आवर्स में ऑनलाइन इवैल्यूएशन में बहुत टाइम लग जाता है, क्या वो शायद सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकेंगे इवैल्यूएशन। इस वजह से इवैल्यूएशन हाफ का लेना प्लान किया है। नेक्स्ट वीक एक हाफ दे दे और उससे नेक्स्ट वीक सेकेंड हाफ। इस वजह से अभी आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, तो दे आर नॉट डिफिकल्ट। एक्सपेरिमेंट्स की होगी ना वैल्यूएशन? जो आप लोगों ने सर उस्मान ने आपको जो एक्सपेरिमेंट करवाए हैं वो कौन से हैं आपके वाइवे के बाद? मैम वाइवे के बाद सिर्फ एक्सपेरिमेंट 8 करवाया है और 2 अब आप ये करवा रही हैं। सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट्स की हाँ वैल्यूएशन हाँ होगी। जी, इन 3 एक्सपेरिमेंट का होगा 4, 7 एंड 8। 4, 7, 8। हाँ जी, ये मैं कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 मैंने चेक किए हुए हैं, उसकी मार्किंग वैसे हुई हुई है, लेकिन पॉसिबल है कि उसको वाइवे में इंक्लूड कर लें इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा काम का भी आइडिया होना चाहिए। तो पहले वो मैनुअल चेक हुए थे उनके, वो आपने कंप्लीट किए हुए हैं, तो बेसिकली जो रिपोर्ट्स आपने बनानी होंगी वो इसकी बनानी होंगी 4, 7 और 8 की, ठीक है। 1 और 2 ऑलरेडी आपने चेक करवाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसको आप मेरा ख्याल है कि उसको मैं इंक्लूड करूँगी आपके वाइवे में। वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। आज या कल में मैं आपको ये कंफर्म कर दूंगी कि आप लोगों का वाइवा किन किन एक्सपेरिमेंट्स का है। 4, 7 और 8 इंक्लूड है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में भी इंक्लूड कर लिए जाए अंदर, क्योंकि मेनली वो उस दिन आपकी लैब रिपोर्ट की वैल्यूएशन हुई है, वो आपका वाइवा ऐसा नहीं हुआ था। पॉसिबली उसको भी मैं इंक्लूड करूँगी अंदर, ठीक है। जब आप लोग डिपार्टमेंट आएंगे तो हम लोगों ने थोड़ा सा शेड्यूल किया है कि आप लोगों का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्विज ले लेंगे सबका। वाइवा शायद लेना पॉसिबल ना हो डिपार्टमेंट में, तो इसकी वजह से आज जो एक्सपेरिमेंट्स कवर करवा रही हूँ। प्लीज़ मैनेज विद मी। नेक्स्ट वीक आप लोगों ने इसकी वैल्यूएशन देनी है, ठीक है। मैम उस लिंक से ओपन एंडेड लैब और सीईपी रिमूव कर दिया आपने? सॉरी क्या? ओपन एंडेड लैब और सीईपी जो थी उस लिंक पे नहीं है। ओपन एंडेड लैब और सीईपी? यस मैम। तो क्या होगा? सीईपी तो आपसे शेयर की है ना मैंने। मैम वहाँ पे फाइल नहीं है, शायद आपने डिलीट कर दिया वहाँ से। ओपन एंडेड लैब की फाइल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो अभी तक हमने शेयर नहीं की आपके साथ। ये करी हुई है, हाँ करी मैम हुई है आई थिंक। ओपन एंडेड लैब, दोनों लिंक्स शेयर की थी, दोनों लिंक्स शेयर की थी, कुछ हाँ दिन चली थी, लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले खोला तो वो आपने डिलीट कर दिया वहाँ से अपनी ड्राइव से।
डिलीट असल में आप दोबारा से लिंक को चेक किए क्योंकि उसमें ना कुछ करेक्शन थी ग्रुप्स की, क्योंकि बच्चों को ग्रुप्स में कुछ इश्यूज थे जो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक थी, वो मैंने करेक्ट करके फाइल दोबारा अपलोड की। चले मैं राइट फिर भी मैम। क्लास के बाद ना क्रॉस चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कि वो सेटिंग्स चेंज कर दी हो, वो शेयर ना की हो आप लोगों के साथ। मैं उसको एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ दोबारा, ठीक है? सीईपी और ओपन लैब दोनों। यस मैम, दोनों। चलो ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद क्रॉस चेक कर लेती हूँ, ठीक है? ओके मैम। मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दूँगी आपके में कुछ क्वेश्चन है उनके जो है ना जवाब टैली नहीं कर रहे, जिस तरह की असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 9 है साथ। हाँ बेटा, ये कुछ इशू पार्ट होगा, सी का। स्पेशली असाइनमेंट नंबर 1 है। इसमें ये इशू है कि आपके जो क्वेश्चन है ना, उनके आंसर जो लिखे हुए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली शायद आपके वो ना आए। ठीक है, तो इट्स ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा राउंडिंग का इशू है। मेरे पास इवन जो आंसर्स हैं जो मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है उसमें भी थोड़े से वेरी करते हैं, तो इट्स ओके। ठीक है, आपका अगर प्रोसीजर ठीक है और डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही ए टू जी का डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस है इट मीन्स कोई ना कोई गलती आपके एंड पे हो रही है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा डिफरेंस है इट इज़ ओके, और ये भी पॉसिबल है कि उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से कंफ्यूजन आपको है तो आप आपस में क्रॉस चेक कर लो। अगर आपस में क्रॉस चेक करके इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मेरे से उसका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। असल में आजकल पीसी का विजिट है इसी वीक में प्रॉब्लली, तो वी आर क्वाइट बिजी इन दैट, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसे जैसे बच्चों की क्वेरीज हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूँ एज सुन एज पॉसिबल। तो असाइनमेंट नंबर 1 में पर्टिकुलरली इशू है, बाकी असाइनमेंट्स में मैंने कोशिश की है कि ये इशू ना हो, उसमें थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो उसके आंसर आपस आपस में कंपेयर करें। अगर स्टेटमेंट पेज के आंसर से थोड़ा सा डिफरेंस है इट इज़ ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपस में कंपेयर कर लें। नहीं मसला सॉल्व हो रहा तो फिर आप मेरे से कंपेयर कर लें आंसर में, आप मुझे कन्वे करें कि आप क्वेरी है, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ठीक है, चलें एक्सपेरिमेंट नंबर 7। Okay, so in this experiment, you have to perform the experiment on the double stage centrifugal pump and you will plot its characteristic curve. Okay, so basic objective same है कि आपने इसमें भी इस मशीन की characteristic curves develop करनी है। So again, you will find out the input power, output power and you will plot the curve. इसमें parameters obviously same नहीं है क्योंकि ये pump है, वो turbine है, तो parameters along x and y they are different, but basic concept is same. So this is regarding the statement, and this is the operators. You need double stage centrifugal pump with the gauges at the delivery and suction side. You need the discharge measuring tank, stopwatches to a numbers, and energy meter or watt meter. This is the main centrifugal pump. It is connected with this motor, and this is the energy meter. ठीक है, सिंपल मीटर जो घरों में लगा होता है, that is termed as energy meter or watt meter. अब इसका क्या यूज है अभी हम डिस्कस करते हैं फर्दर। थोड़ा सा basic review that pump is a machine which is converting the mechanical energy into the hydraulic energy. It is used to move the liquid from one point to other point. It produces the head and flow in the liquids. A centrifugal pump is a pump which is converting the mechanical energy to hydraulic energy by the centrifugal force, and this is produced by the rotation of the impeller. You are particularly dealing with a double stage centrifugal pump. अगर आपको थोड़ा सा याद है, double stage means that on the same shaft two impellers are connected in the pump. So this is the typical layout. ये cutout show किया हुआ है एक double stage centrifugal pump का. This is the shaft of the pump and on the same shaft two impellers are connected. ये देखें दो impellers लगे हुए हैं. If this is a typical double stage centrifugal pump, we have already discussed the working of the machine. ये आप लोगों ने लैब के अंदर भी कवर किया है, मैंने आपको थ्योरी में भी कवर करवाया है. So I hope you know the basic working principle of this machine also. Now we'll focus on the parameters which you have to compute for the graph. The first one is again the input power, that is also termed as indicated horsepower. अब इस केस में ये फिगर देखें. The input power to the pump is basically the mechanical energy that is supplied in the form of the rotation of the shaft. Shaft का rotation किस तरह से supply कर रहे हैं? That is with the help of the motor. Okay, so motor connected है pump के साथ.
motor will basically supply the input energy to the pump. So input power of the pump is equal to the output power of the motor. Now in this case, it is important to note down that input power of the motor is not exactly equal to this output. Okay, क्योंकि मोटर की भी अपनी एक efficiency है, so it is converting that much percentage of this input to its output, जो कि आगे पंप के लिए input बन रहा है. So in this case, अभी देखिए indicated horsepower, which is the input power of the pump, it is equal to this output power of the motor. आप मोटर की आउटपुट कैसे निकालेंगे? अगर आपको इनपुट नोन है, आप सिंपली इस इनपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर. When you do this multiplication, you will get the input power of the pump, which is the output power of the motor. Now, what is E time? That is the efficiency of the motor, and in the case of the motor which is attached to the pump in your lab, its efficiency is 85% or it is 0.85. Input power of the motor, ये यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, you are basically measuring that with the help of this energy meter, because it is the electrical energy. जितनी एनर्जी आप मोटर को एज इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, वो आप मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर. वो उसी मीटर में से पास करके आ रही है. कितनी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं वो आप इस मीटर के थ्रू मेजर करेंगे. So the formula for this input power of the motor is 1 over NT1, and it is having the parameters relevant to this meter. ठीक, क्योंकि उसी के थ्रू आप इनपुट मेजर करेंगे. What is N? N is the number of the revolutions of the disk of energy meter for 1 kilowatt hour energy. Now please listen to this very carefully. अगर आप लोगों को याद है, अगर अभी भी किसी के घर में पुराने मीटर्स लगे हुए हैं, because usually आजकल जो न्यू मीटर्स हैं, they are digital meters, they are giving you directly the number of the units which you have consumed. लेकिन जो पुराने मीटर्स हैं, they were having a disk in them. उनमें डिस्क लगी होती थी स्टील की या सिल्वर कलर की, जो कि रोटेट कर रही होती है कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, उसकी रोटेशन से बेसिकली आपको आइडिया होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं. अब ये एन क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस ऑफ द डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर फॉर 1 किलोवाट आवर एनर्जी. व्हाट इज दिस 1 किलोवाट आवर? दिस इज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. जो यूनिट है ना, जो जिसको हम आम लैंग्वेज में यूनिट कहते हैं, इतने यूनिट्स आपने एनर्जी के यूज कर लिए हैं. दैट 1 यूनिट इन द टेक्निकल टर्म इज 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी. अब आपके लिए इस मीटर का जो एन है वो 30 है. इट मीन्स के आपके पास लैब में जो मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर डिस्क जब 30 रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, इट मीन्स के आपने तब 1 यूनिट एनर्जी का उस मीटर में से पास होता हुआ यूज कर लिया. अगर रोटेशन उसने 60 कवर किए हैं, इट मीन्स के आपने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं वो 2 किए हैं. क्या एंड रिस्पेक्टिवली अगर 30 से कम है रोटेशन तो उतना ही आप उसे लोअर डाउन कर लें ऑन द सिमिलर स्केल. So this is n. Now in your case this n is 30. Obviously it is meter dependent. अगर आप मीटर चेंज कर रहे हैं तो ये n की वैल्यू भी चेंज होगी. ठीक है, इस तरह अगर आप मोटर चेंज कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि मोटर की जो एफिशिएंसी है वो भी चेंज हो रही है. इट इज़ नॉट 85%. So these are the values which are fixed for these machines in the lab. अगर आप इन मशीन्स को चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी. Now put these values in this formula. अच्छा सॉरी, इसमें T1 रह गया. What is this T1? This T1 is the average time which is required for 1 revolution of the disk of energy meter. Okay, what is N? That is the number of the units which are required to consume 1 unit of the energy. अब वो डिस्क रोटेट कर रही है, उसका एवरेज टाइम क्या है 1 रोटेशन का? That is T1. It is the average of 10 revolutions. Okay, so you will note down the time for 10 revolutions. You will divide it by 10. That is T1. So you need 2 stopwatches in this experiment. एक आपने यहाँ यूज करनी है T1 को नोट करने में. Okay. Now put the values in the formula, and when you will simplify this, you will get this factor. It is 102,000 by T1. In this case, this T1 is a variable. It will depend upon the energy consumption. Okay, so accordingly it will vary, and so the input power. Now we will discuss how you will measure the output power. In this case, pump is converting the mechanical energy to hydraulic energy. So in this case, this hydraulic energy is the output. Hydraulic energy या hydraulic power का formula क्या है? That is gamma QH.
इस केस में गैमा क्यू एच है फॉर्मूला आउटपुट पावर ऑफ पंप का, एंड इट वाज सेम फॉर्मूला फॉर द इनपुट पावर इन केस ऑफ द टरबाइन। डिपेंड कर रहा है कि आपकी मशीन कौन सी है, कन्वर्जन कौन सी एनर्जीज की हो रही है, एंड रिस्पेक्टिवली यू विल यूज द फॉर्मूला। And the same parameters, gamma is the specific rate of the water, Q is the discharge, that is volume per unit time, and AHM is the manometric head. You have two manometers. One is, you have two Bourdon gauges. One is on the suction side of the pump and other is on the delivery side. Apply the correction on the Bourdon gauge reading, add the map, and you will get this HM. Okay, so these are your observed readings. Find out the efficiency, that is the ratio of the output and input in percentage. And finally, you will plot the characteristic curve. So in this graph, along X, you have the discharge in meter cube per second, and along Y, you have efficiency, P naught, and manometric head. So on same pattern, you will plot the graphs over here as well. Okay, so आप eta maximum locate करेंगे, respective to eta maximum you have Q naught. फिर इसी Q naught के respective आप note करें H की value, that is H naught. The value of P naught respective to this is P naught, normal output power. P naught maximum is the maximum ordinate of this power curve, and maximum manometric head, this point, is also termed as shut-off head. So shut-off head is the head which is developed by the centrifugal pump when the delivery valve is fully closed and pump is still in operation. It is the maximum head which is produced by the pump. Okay. So procedure is very simple. In this case, you are just controlling the opening of the delivery valve. So delivery valve की opening को vary करेंगे, and for each valve opening you will have different readings for the discharge and for HM. So respectively आपका T1 भी vary करेगा. So this is how you can get number of points to get the graph trends. आप ये performance देखें please.
Okay, next you have to draw figure number 7.1. That is the lab layout of the double stage centrifugal pump. You have already drawn this in your experiment number 6. Figure मैंने दोबारा से यहाँ show कर दी है. So this is the figure which you will draw in your manual. So now this is table number 7.1. This is the table of observations and calculations. So in this case, these values will be given to you as initial observations. Also in this table, you will be given with this HMS observed and HMD observed audit time. Okay, this time T and this time T1. These 4 columns will be given to you. So please be very careful regarding the unit conversion. Rest of the calculations are very easy. सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने यूनिट कन्वर्जन बहुत केयरफुली करना है कि रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट. Finally, you will plot the graph and you will find out the results from the graph and you will put them in this table. And at the end, you will write down the comments. This is the data. Okay. So this is given to you. You will carry out your calculations by using the data given in these tables. So this is regarding this experiment number 7. Okay, thank you. अब अगर कोई क्वेश्चन है आपके, we can discuss them one by one. Also, I will share the link to CEP and ODL open-ended lab again. मैं दोबारा शेयर कर दूंगी if the previous link is not working. अब मैम अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सपेरिमेंट जी। नंबर 7 में हेड की करेक्टेड वैल्यूज कैसे आनी है? उसमें आपकी एक ऑब्जर्व रीडिंग है, ठीक है, जो आपने ग्रेड से नोट की हुई है, जो आपको दी हुई है. करेक्शन आपने अप्लाई करनी है एलिवेशन करेक्शन, ठीक है, ZS और ZD. सक्शन साइड पे जो डिलीवरी हेड सॉरी बॉटम केज लगा हुआ है उसका एलिवेशन डिफरेंस वो गिवन है आपको. इसी तरह डिलीवरी साइड पे जो बॉटम केज लगा हुआ है उसका जो एलिवेशन डिफरेंस है सेंटर ऑफ द पाइप से सेंटर ऑफ द गेज तक वो आपको गिवन है ZS और ZD. वो आपने ऐड करके फिर करेक्शन करनी है, ठीक है. ओके मैम. मैम दोनों एक्सपेरिमेंट्स में करेक्शन ऐड होनी है ना? दोनों में ऐड होनी है, दोनों में ऊपर ही लगा हुआ है बॉर्डर के जिससे ऐड होनी है. सिर्फ एक चीज़ जो आपने गौर करनी है प्लीज, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि यूनिट्स आपने देख लेने हैं. ये नहीं करना कि अगर एलिवेशन डिफरेंस जो करेक्शन है जी, अगर वो आपने इंची से मेजर की हुई है तो आप उसको ऐड कर रहे हैं HT के अंदर जो कि मीटर्स में है या जो PSI में है. तो मेक द यूनिट्स कंसिस्टेंट. के यूनिट्स कन्वर्जन आपने पहले ही कर लेनी है सोल्यूशन या टेबल को फिल करने से पहले. दोनों में ये करेक्शन ऐड ही होनी है, ठीक है. लेकिन यूनिट कन्वर्जन आपने जरूर देखनी है इनिशियली. आप मीटर में इंच ऐड नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये गलतियाँ यूजुअली हो जाती हैं, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा. एंड सेकेंडली, व्हेन यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ डोंट ज्वाइन ऑल दी पॉइंट्स वन बाय वन. यही इश्यूज थे आपके जब आपके मैंने पहले जो एक्सपेरिमेंट चेक किए हैं. आपने सारे पॉइंट्स को वन बाय वन ज्वाइन नहीं करना. यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट सेम ट्रेंड, ठीक है. स्कैटर्ड पॉइंट्स होते हैं, यू हैव टू ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइंस. किस ट्रेंड में होंगी वो आपको शो कर दिया हुआ है. Also, along y, you have 3 parameters in both the graphs, but the origin of all 3 parameters are same. वो सिर्फ आपके डिफरेंट स्केल्स होने की वजह से हमने वो डिफरेंटली शो किए हैं. अदरवाइज वो डिस्टेंस भी ऑन स्केल नहीं है, वो रैंडमली ड्रॉ किए हैं लाइन, ठीक है. तो आपके सारे ग्राफ्स इंटरलिंक्ड हैं. आप एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ पे मूव कर रहे हैं, इसलिए आपने तीनों ग्राफ्स का ओरिजिन सेम रखना है. स्केल ज़रूरी नहीं है तीनों का सेम हो क्योंकि तीनों पैरामीटर्स डिफरेंट हैं. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपका स्केल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी दो पैरामीटर्स है, आपने अपने अकॉर्डिंगली कोई भी स्केल सेलेक्ट किया है, तो ये पॉसिबल है कि अगर मैंने शो किया हुआ है कि टॉर्क वाला जो ग्राफ है वो दोनों एफिशिएंसी और पावर वाले ग्राफ से ऊपर है, तो पॉसिबल है कि आपका स्केल इस तरह से है कि आपका टॉर्क वाला ग्राफ नीचे आ रहा है दोनों से. तो इट इज़ ओके, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्केल. तो पोजीशंस उनकी ऊपर या नीचे वेरी कर सकती हैं, वो आपके स्केल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. लेकिन जनरल ट्रेंड जो एक ग्राफ का इंडिविजुअली है वो सेम रहेगा, मैंने शो किया आपको. तो प्लीज मेक श्योर की द ओरिजिन ऑफ ऑल द 3 ग्राफ सेम. ऑल्सो द स्केल कैन वेरी. स्केल अगर वेरी कर रहे हैं तो उनकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द अदर ग्राफ ऑन सेम ग्राफ शीट दैट कैन ऑल्सो वेरी. अगर मैंने ऊपर शो किया हुआ है तो पॉसिबल है कि आपने स्केल छोटा यूज़ किया है या डिफरेंट यूज़ किया है तो वो नीचे आ गए ग्राफ बाकी दोनों तरफ से. तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक, ठीक है, वो गलत नहीं है. तो वट एवर यू गेट जस्ट मैंशन दैट
what you are having. Okay, so that was regarding today's lab. From the next week onward आप लोगों की evaluation start होगी. अब अगर इसमें कोई queries हैं हम उसको discuss कर लेते हैं अभी. तो you can ask me one by one if you have any query regarding this. मैम एक जी, रिक्वेस्ट सवाल? थी हाँ, जी. मैम के जो पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं मैम उनका वाइवा में मत इंक्लूड करें मैम. पहले हमारे पे बहुत बर्डनाइज हुए हैं आजकल मैम. सिलेबस बहुत स्पीड से जा रहा है. हम लोग इतने हैंडल 5 एक्सपेरिमेंट्स नहीं प्रिपेयर कर सकेंगे. हमने और चीज़ें भी चलो करनी ठीक है. है, तो देख लेते हैं क्योंकि मैंने evaluation करते हुए कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे हुए हैं, तो वो जो मैंने मार्किंग की थी वो मैंने आपकी वाइवा प्लस कॉपी दोनों के ही रेफरेंस से मार्किंग की हुई है. तो चलें लेट्स सी, देखते हैं. अभी मैं सबसे भी डिस्कस कर लूँ. होपफुली आप यही वाले ऐड होंगे. अगर ऐड हो भी गए वो दोनों तो थोड़ा सा आप लोग बस रिवाइज कर लीजिएगा कि आपने काम क्या किया हुआ है. वही पूछना होता है. और वो वैसे मैंने आपसे चेक करते हुए भी साथ साथ पूछ लिया था कि आप लोगों ने काम कैसे किया है, ये कैसे किया है. तो ये क्वेश्चन होते हैं सारे वाइवे में. चलें यस ये मैम. मैं आपको कंफर्म कर दूँगी. ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूँगी एक दफ़ा फिर, मैम ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. जी. मैम 21 तक या फिर आपने ओपन एंड और सीईपी की डेट भी नेक्स्ट वीक में ही रख दी है, तो ये प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा ऊपर से वाइवा और 2 एक्सपेरिमेंट एक वीक के अंदर, या उसकी डेट एक्सटेंड कर दें आप? इसकी डेट है 21 तक. सीईपी या ओपन एंड लैब में से किसी एक की डेट 21 अच्छा, वो नेक्स्ट मंथ की नहीं है, नेक्स्ट मंथ की. यस मैम वो तो जुलाई की है. ओके हाँ, मैम. जुलाई की है ना. ठीक है, क्योंकि अभी तो आपके ये 2 वीक चल रहे हैं. वो साइकोमोटर में आपने देनी है. अभी 2 वीक आपकी क्लासेस चलेंगी, उसके बाद 1 वीक आपकी एग्जाम है. इट मीन्स अभी टोटल 3 वीक हैं आपके पास को सबमिट ओके करवाने मैम. के. ठीक है, वो मैंने आपका जो साइकोमोटर वाला वीक है ना, उसका फर्स्ट डे रखा हुआ है. ठीक है, तो उसमें टाइम है आपको. हाँ जी, और और मैं किसी को क्वेश्चन? जी मैम जी. असाइनमेंट में ना वो एक डबल नोजल वाली क्वेश्चन था मैम. उस पर हमें एनर्जी इक्वेशन अप्लाई नहीं करनी आती. तो मैम आप ये उसका सोल्यूशन शेयर कर दें. प्रॉब्लम 6.9 है. मैं कर देती हूँ. आप पता क्या, ये एक और जो स्टूडेंट ने भी शायद आपके सेक्शन के ही हैं, उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा था, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला. तो आप भी ना मुझे क्वेरी अगर आपकी है, तो आप ना मुझे उसकी स्टेटमेंट जो है ना व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे. तो फिर मैं जैसे अभी भी मीटिंग है क्लास के बाद, फिर मैं जैसे फ्री होती हूँ, मैं श्योरली आई विल ट्राई माई बेस्ट एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ. सोल्यूशन ही मैं शेयर कर दूँगी उसका आपके साथ. ठीक है, ताकि आप बाकी के ओके साथ शेयर कर लें उसको. ठीक है. मैम हमने टरबाइन जो है वो हेड की बेस पे सिलेक्ट करें तो कोई और होती है, अगर स्पेसिफिक स्पीड की बेस पे करें तो वो कोई और होती है. तो हमने मेथड हाँ कौन जी, सा? अच्छा इसमें आप लोगों ने देखा है पीडीएफ की फाइल ना मैंने अपडेट की थी उस लिंक में. तो जो न्यू फाइल मैंने अपडेट की है उसके अंदर मैंने एक ग्राफ अटैच किया हुआ है. टेंटेटिव ग्राफ है, दैट इज इन बिटवीन हेड एंड स्पेसिफिक स्पीड. इन बिटवीन उसमें कर्व्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइंस की. तो वो एक बेस्ट वे है हेड और स्पेसिफिक स्पीड दोनों को यूज़ करने का. ठीक है, हेड का यूजली जो है ना, हेड हेड को यूज़ करते हैं वो लोग जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. इट इज़ मोर ऑन द एक्सपीरियंस बेस्ड सिलेक्शन. स्पेसिफिक स्पीड जो है दैट इज मोर ऑन दी न्यूमेरिकल बेस्ड या कैलकुलेशन बेस्ड, कि आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं. हेड की बेस पे जो सिलेक्शन है दैट इज मोर रिलायबल ऑन द एक्सपीरियंस बेस्ड. ठीक है. अच्छा, इसमें मैंने एक ग्राफ उस पीडीएफ में लगाया हुआ है. अगर आप लोगों ने पहले से पीडीएफ डाउनलोड की हुई है तो दोबारा से जाके उसको चेक करें. सिलेक्शन ऑफ द टर्बाइन वाली जो स्लाइड है ना रिएक्शन टर्बाइन में, उसके अंदर मैंने ग्राफ अटैच किया हुआ है. दैट इज इन बिटवीन हेड एंड स्पेसिफिक स्पीड. उस ग्राफ का एडवांटेज क्या है कि जो आपका हेड और जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड है उन दोनों की बेस पे आप एक टाइप डिसाइड कर सकते हैं टर्बाइन की. ठीक है. अब इसमें कुछ बच्चों को ये इशू हो रहा है कि उनका जो पॉइंट है ना वो उनमें से किसी भी कर्व पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. अब इसमें मुझे जो ज़रा प्रॉब्लम लग रही थी कि हो सकता है कि आप लोग स्पेसिफिक स्पीड जो है वो सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर रहे. उसको एक दफ़ा ज़रूर क्रॉस चेक करें, क्योंकि अब मैंने आपके साथ जो लैब थ्योरी में डिज़ाइन डिस्कस किया है दैट इज़ अ वेरी बेसिक डिज़ाइन. कि आप लोगों का जो डाटा है वो टेंटेटिव है, वो रोल नंबर वाइज है, तो उसमें बहुत सी वेरिएशन पॉसिबल हैं. तो पॉसिबल है कि आपको बहुत से आगे और इश्यूज भी आए. तो कोशिश करें कि बेसिक सोल्यूशन आपके पास वही है जो मैंने स्लाइड में शेयर किया है, बट डोंट एक्सपेक्ट द वेरी सिंपल सोल्यूशन एज इट इज़ गिवन इन द स्लाइड. आप और बुक्स को रेफर करें, आप और लिटरेचर को रेफर करें. ठीक है, तो थोड़ा लिटरेचर और रेफर कर रहे हैं इसके लिए. पर अब स्लाइड्स में जो एक प्रॉब्लम है वो इसके लिए विजिबल नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले जो सिलेक्शन है उसके लिए वो प्लीज़ ग्राफ देखें. अगर ग्राफ में कहीं इंटरसेक्शन नहीं करा पॉइंट, वैसे ये इशू कभी भी नहीं आया लेकिन उन स्टूडेंट्स का आ रहा था
कि पॉइंट कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा किसी ग्राफ पे, उसमें सबसे पहले आप लोग ये चेक करें कि आप लोगों की कैलकुलेशंस ठीक हैं, आप लोगों ने स्पेसिफिक स्पीड की कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं की, कहीं पे आपने पावर वॉट्स में लेनी है, किलो वॉट्स में तो नहीं लिखी, या किलो वॉट्स में लेनी है वॉट्स में तो नहीं लिखी, इस तरह की गलती ना की हो आपने। ठीक है, इसको एक दफ़ा चेक करें। अदरवाइज अगर फिर भी इशू आ रहा है तो फिर जो भी नियरेस्ट कर्व है आप उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो पहले उस ग्राफ का आप रेफर करें और उसके बाद आगे कोई इशू है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और अब मैं डिस्कस आपसे कर रही हूँ, एक और इशू था स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि प्लीज मेक श्योर द यूनिट्स विच यू आर यूजिंग। मैंने कोशिश की है कि आपकी स्लाइड्स में जो टेबल्स हैं स्पेसिफिक फीड के, हेड के और जो ग्राफ अटैच किया हुआ है दैट इज इन द एसआई सिस्टम। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं या आप प्रॉपर्टी देखते हैं या कोई और बुक देखते हैं तो पॉसिबल है कि वहाँ पे एफपीएस में हो। ठीक है, तो यूनिट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई ग्राफ है जिसमें स्पेसिफिक फीड एफपीएस में है तो हेड भी आपने एफपीएस में ही यूज करना है, फिर उस ग्राफ को यूज करें। अदरवाइज सारा कुछ एसआई में ही रखें, दैट इज मोर इजी टू सॉल्व। तो यूनिट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम असाइनमेंट 2 में डायमेंशनल एनालिसिस वाला एक क्वेश्चन है, वो तो हमने नहीं पढ़ा मैम, वो भी करना है क्या? असाइनमेंट नंबर 2 में मेरे वाले पार्ट में से है। यस मैम, असाइनमेंट 2 पार्ट ए, वो सिर्फ गो थ्रू करनी है मैम। अच्छा हाँ, जो गो थ्रू वाली है वो तो इट मीन्स के सॉल्व हुई हुई है आपके रेफरेंस बुक में, लेकिन आपने उसको सॉल्व करना है दोबारा से। ठीक है, मुझे याद नहीं है, असाइनमेंट मैंने पहले की बनाई हुई है, तो अगर आप शेयर कर देंगे आई कैन प्रॉपरली गाइड यू। ठीक है, आप मुझे यूँ करें कि अपनी जो क्वेरी है ना उस स्टेटमेंट की पिक्चर के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपने करनी है या नहीं करनी है। ओके मैम, लेकिन हमने टॉपिक नहीं पढ़ा ना डायमेंशनल एनालिसिस वाला, इसलिए कह रहा था। बच्चे क्लास प्लीज गिव मी प्लीज 5 मिनट्स। जी क्लास, हाँ जी, आप ना प्लीज मेरे से स्टेटमेंट की पिक्चर शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं कंफर्म कर दूंगी। अगर तो बहुत सिंपल है मैं देख लूंगी उसे, मुझे अब याद नहीं है इसे। अगर तो सिंपल है देन प्रोबेबली आई विल लेट इट गो, कि आप उसको एक दफ़ा देख लें। क्या अगर डिफिकल्ट है आपके कोर्स से ज़्यादा इरेलीवेंट लग रही है तो फिर मैं उसको स्किप करवा दूंगी। आप उसको सेंड कर दीजिएगा मुझे, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, आपको बता दूंगी। हाँ जी, एनीवन एल्स? चलो प्लीज अटेंडेंस मार्क करवा लें अपनी। मैडम वो जी जेट जी, जेट का जो डायमीटर है वो अगर D/18 से भी कम आए तो ओके डी करेंगे बाई इसको? 18 से, हाँ अब इसमें ये भी इशू आ रहा है। D/18 से कम है इसका मतलब ये है कि आपका जो डायमीटर है वो काफ़ी छोटा है ना, मतलब उसका प्रोफेशनल एरिया बहुत कम है एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ द रनर। But is, in my opinion, I think that you should provide that minimum diameter. But again, I'm saying थोड़ा सा लिटरेचर रेफर करें इसके लिए। मेरा ओपिनियन वैसे यही है कि आपको पॉसिबल है कि उतना मिनिमम तो प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, कि बहुत रनर का साइज बहुत बड़ा है, उसके बकेट का साइज बहुत बड़ा है और आपका जेट का डायमीटर बहुत कम है उसके रिस्पेक्टिव, मे बी इट विल नॉट बी एबल टू इम्पैक्ट दैट मच फोर्स। मेरा ख्याल है कि उतना मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इसको प्लीज़ रेफर करें। मैं इससे बार बार आपसे कह रही हूँ कि और बुक्स में देखें, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। ठीक है, डगलस कुछ बच्चे कह रहे थे, डगलस मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा डॉफर में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करें आपको कुछ बुक्स मिल जाएंगी, तो उसमें देख लें। ठीक है, मेरा ओपिनियन है कि कम से कम आपको मिनिमम प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन इसको देख लें, कुछ प्रॉब्लम्स में देख लें, हो सकता है कि आपको कोई और मॉडिफिकेशन कहीं और पे करनी पड़े। ठीक है,
इसको एक दफ़ा प्लीज़ क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। मैम वो देखा था, वो रेशो कह रहे थे, तो रेशो तो हमारी 30 से ज़्यादा है, वो 25 तक रेशो कह रहे थे होनी चाहिए, डायमीटर ऑफ द रनर टू डायमीटर अच्छा, ऑफ। यानी कि ये D/25 तक जा सकती है। जी मैम, हमारी 33 जा रही है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास जो भी आ रही है आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा ही है। नहीं मैम, रेंज से बाहर जा रही है। मैक्सिमम उन्होंने कहा कि 25 रेशो होनी चाहिए रनर के डायमीटर और जेट के डायमीटर के दरमियान रेशो, तो हमारी 33 आ रही है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इट मीन्स कि आपको डायमीटर, आपका जेट का डायमीटर काफ़ी कम आ रहा है ना, ये वजह हुई है ना। जी मैम। तो इंक्रीज कर लें, मिनिमम जो है कम अज़ कम उतना, आई थिंक उसका हल ये है कि जो मिनिमम रेंज है कम अज़ कम उतना जरूर प्रोवाइड करें। ओके मैम। ठीक है, उसमें हाँ, आप जो भी लिटरेचर आपने इसके लिए रेफर किया है ना, कोशिश करें कि आप ये पूरा रिपोर्ट एक फॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो आपने, जैसे एफिशिएंसीज आपको गिवन नहीं है, आपने अज्यूम करनी है, तो किसी बुक से रेफर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको ना कोट करें। जैसे अभी अगर आपने कहीं से ये चीज़ पढ़ी है कि रेंज ये है और आउट जा रही है, तो उसको प्रॉपर्ली कोट करें दैट यू हैव रेफर्ड दिस लिटरेचर, और उसके रिस्पेक्टिवली आपने ये डिसाइड किया कि आप डिज़ाइन में ये पैरामीटर्स या ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कोशिश करें कि उनको भी कोट करें। मैम ये नेट से देखा था, उसका लिंक वेबसाइट का बस लगा दें। कोई, हाँ, वेबसाइट लिंक लगा दें आप। रेफरेंस एंड पे आपने लिखनी है ना, तो वहाँ पे रेफरेंसेस में उसका लिंक लिखते हैं। और वेबसाइट पे भी ना कोशिश करते हैं कि वो मतलब ऑथेंटिक हो, किसी ये भी है। चलें, अभी फिलहाल अभी आप काम शुरू करें इसी से, बेटर इसके आर्ट एनर्जीज आपकी उस तरफ ना लगवाई जाएं, आप काम जरूर करें शुरू। क्योंकि इंटरनेट में भी ना रिसोर्सेज वो वाले देखते हैं जो रिलायबल है, वरना अगर मैं कुछ इंटरनेट पे लिख के डाल देती हूँ या आप कुछ लिख के डाल देते हैं, तो कोई उसको उस तरह से कोट नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट हैव, जब तक वो चीज़ पब्लिश नहीं है ना, या वो किसी और ने साइट नहीं की हुई है, इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट मच ऑथेंटिक या रिलायबल। तो कोशिश करते हैं इंटरनेट पे भी कि वो चीज़ सर्च करें, या ढूंढें, किसी बुक में से भी आपको मिल जाएगा। है, तो कोशिश करते हैं कि जो आप लिटरेचर रेफर कर रहे हैं दैट शुड बी ऑथेंटिक, कि उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन ना करे, बाकी सारा को छोड़ के वो उसके ऊपर ना आपको लेके बैठ जाए कि भाई ये लिटरेचर तो ऑथेंटिक है ही नहीं। ठीक है, तो आई विल नॉट आस्क यू कि भाई अभी फिलहाल उस पर अपनी एनर्जी लगाएं, पहले अपना काम सारा कंप्लीट करें, फिर बाद में थोड़ा सा इस पर आपको टाइम मिलता है तो जरूर इन्वेस्ट करें कि एक प्रॉपर लिटरेचर आपने कैसे रेफर करना है। ठीक है, चलें, ओके, मैम 111। मैम डगलस जी, का ना आपने सिर्फ 9th चैप्टर शेयर किया हुआ है, पूरी बुक अगर आपके पास है तो फिर काइंडली दोबारा शेयर कर दें। मतलब मेरे पास बुक पड़ी हुई है शायद, लेकिन वो चलो मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये हार्ड कॉपी तो मैंने क्रॉस चेक करके दी थी कि ये वही प्रॉब्लम्स वाली मतलब उसका हार्ड कॉपी थी जिससे मैंने प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आपको। सॉफ्ट फॉर्म में मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, मेरा ख्याल है, मैं चेक कर लेती हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एडिशन, लेकिन जो भी है मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। इफ़ आई हैव द बुक आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है, वो आप रेफर कर लीजिएगा, असाइनमेंट के रेफरेंस से नहीं तो बाकी डिज़ाइन के रेफरेंस से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी उसमें से। ठीक है, मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ। ओके मैम, थैंक यू। ओके, 111, 112, Yes, ma'am, present. 113, Yes, ma'am. 114, प्रेजेंट मैम। 115, Yes, ma'am. 116, 117, 118, Present, ma'am. 119, 120, 121, 122, Present, ma'am. 123, 124, 125, Yes, ma'am. 126, Yes, ma'am. 127, Yes, ma'am. 128,
129, 130, 131. Present, ma'am. 131. Okay, 132, Present, ma'am. 133, Present, ma'am. 134, Present. 135, 135 present, ma'am. 136, Present, ma'am. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142 मैम प्रेजेंट, जी 142 प्रेजेंट, 142, 143, 143, 144, ma'am. okay, 144, Yes, ma'am. 144 present. 145, 146, Yes, ma'am. 146. 147, Yes, ma'am. 148, 149, 150, Yes, ma'am. 151, Yes, ma'am. 152, Present, ma'am. 153, Yes, ma'am. 154, Yes, ma'am. Present. 155, 156, Yes, ma'am. 156. 15, ठीक है, ओके 157, चले बाकी किसी का मुझे अंदाजा नहीं है कि रोल नंबर आपके कहाँ तक है, जिसकी रह गई है वो काइंडली मुझे चैट में बता दें, चैट में प्लीज टेक्स्ट कर दें। मैम हाँ जी 123, ओके ओके, एनीवन एल्स? तलहा तुमने कितने लोगों की अटेंडेंस लगवाई है मुझे बताओ, मैं तब से तुम्हें देख रही हूँ। 123 की भी तुमने बताई है, 124 की भी तुमने बताई है। मैं 123 हूँ मैम, तलाल हसन, और कोई नहीं मैम मैंने बताया। 123, अच्छा ये इसने तलहा, हाँ इसने बताई है ना, चलो है Yes. वे ये मैंने क्रॉस चेक करके सारी एंटर करनी है, तो कोशिश करें कि अपने अपनी लगवाएं वरना वो लगेगी नहीं, फायदा नहीं है। हाँ जिन लोगों ने चैट में बताया है उनकी मैंने सबकी मार्क कर ली है। Anyone else? चलें ओके मैम क्लास, इफ यू डोंट हैव एनी फर्दर, जी मैम 144 की बताइएगा, हो गई है? 144, हाँ जी हो गई है। ओके मैम, थैंक यू। चलें ओके क्लास।